मेरा इस बार कार एक्सपीडिशन का मैसेज है, सेव गर्ल चाइल्ड, सेव द फ्यूचर मदर, सेव द फ्यूचर जनरेशन एंड सेव द हम तीनों मिलके ये एक्सपीडिशन स्टार्ट किया है, तपोती दी, झरना दी और मैं। पूर्व बर्धमान का हेमादपुर मोड़ से प्राणी संपद उन्नयन मंत्री स्वपन देवनाथ महाशय हमारे ये जर्नी फ्लैग अप करके स्टार्ट किया है। कश्मीर टू कन्याकुमारी सब रोड टिपर का एक ख्वाब रहता है रोड टिप करने के लिए, लेकिन मैंने किया है लद्दाख कश्मीर टू कन्याकुमारी। आप लोग ये वीडियो पूरा देखना, बहुत सारी जानकारी भी मिल जाएगा और जो लोग K2 करना चाहते हैं उन लोग को भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगा। हम लोग अभी कंप्लीट किया है लद्दाख कश्मीर टू कन्याकुमारी रोड टिप। तो ये रोड टिप पूरा कंप्लीट किया है और तब आप मेरे साथ झरना दी है, कुछ हम लोग शेयर करेंगे इस रोड टिप के बारे में। बहुत ही डेंजरस लद्दाख हम लोग कंप्लीट किया है। झरना दी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कैसा था ये रोड टिप। सब लोग कश्मीर टू कन्याकुमारी करते हैं, लद्दाख करते हैं, लेकिन हम लोग कश्मीर से लद्दाख गई, लद्दाख टू कन्याकुमारी कंप्लीट किया है। एक्सपीरियंस शेयर करो, कैसा लगा? एक्सपीरियंस মানে বহুত খুব সুন্দর এক্সপিরিয়েন্স। আমরা রওনা হলাম বর্ধমান থেকে, হেমাদপুর মোড় থেকে। আমাদের এখানকার মন্ত্রী মাননীয় প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ মহাশয় আমাদেরকে ফ্ল্যাগ তুলে আমাদেরকে যাত্রাকে উদ্বোধন করে দিলেন। আমাদের যখন স্কুলে ছুটি পড়ে, গরমের ছুটি বা পূজা অবকাশ বা গ্রীষ্মাবকাশ শুরু হয়, তখনই আমরা কোনো সামাজিক বার্তা নিয়ে আমরা এইরকম রোড ট্রিপে বেরিয়ে যাই। আর আমাদের চালক সুতপা, ওর গাড়িটাকে নিয়ে, বাহক ওর গাড়ি, এই গাড়ি নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি বিভিন্ন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে। এর আগে বহু ট্রিপ করেছি, এবার যেটা সেটা ট্রিপ আমরা যেটাকে সেটা সবথেকে আমার জীবনের সবচেয়ে ডেঞ্জারাস, ভয়ঙ্কর। যেমন ভয়ঙ্কর তেমন আবার খুব ভালো লেগেছে। মানে কি বলবো, এটা মানে অভিজ্ঞতা যেটা হয়েছে সেটা দারুণ অভিজ্ঞতা। झरना दी बोल रहे थे डेंजरस लद्दाख हम लोग कंप्लीट किया है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और उसके अंदर से गाड़ी लेके आना बहुत ही डिफिकल्ट था। इस बार आप लोग के सामने तपो दीदी शेयर करेंगे उनकी एक्सपीरियंस। माउंटेन टॉप সুতপার জিপে 3 সদস্যের এক সদস্য তপতি দেবনাথ দিদি, আমাদের যে সিনিয়র মোস্ট উনি ছিলেন ঝর্ণা মালাকার, আর আমাদের প্রাণ ভোমরা সুতপা দাস আর তার গাড়ি প্রিয় গাড়ি। এই নিয়ে আমরা পরিক্রমায় বেরিয়েছিলাম। তো 18টা রাজ্য পরিক্রমা করে এসেছি। আমাদের যে পরিভ্রমণ ছিল সেটা হচ্ছে কাশ্মীর টু কন্যাকুমারী, কলকাতা থেকে কাশ্মীর টু কন্যাকুমারী, তারপর লাদাখ। আমরা মনস্থির করেছি যে অবসর যাপনটা যে কোনো ভেকেশনে আমরা অবসর হিসেবে আমরা বেছে নিই কিছু সামাজিক কাজকর্ম। আমরা যেহেতু অনেক স্ট্রাগল করে বড় হয়েছি, সেই জন্য আমরা ঠিক করেছি প্রত্যেকটা ভেকেশনে কোনো না কোনো এরকম উদাহরণ যাতে তৈরি করতে পারি কাউকে। हमारे ये कार एक्सपीडिशन का जो मैसेज है वो है सेव गर्ल चाइल्ड। इसका मतलब हम लोग ये बोलना चाहती हूँ, घर में लड़का को जैसे अपॉर्चुनिटी मिलता है इस्टेब्लिश करने का, लड़की लोग को भी वैसा ही अपॉर्चुनिटी दो, उनको जल्दी शादी मत करवा दो। हम लोग ये मैसेज लेके कोलकाता वेस्ट बंगाल से स्टार्ट किया है, पहुँच गए हम लोग लद्दाख का खारदुंगला पास, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है खारदुंगला पास। और हम लोग वहाँ हमारे मैसेज फैला है और हमारे साथ वहाँ पर जो टूरिस्ट थे, ट्रैवलर थे, रोड टिपर थे, वो लोग भी सपोर्ट किया है। ये बोले, वो लोग भी बोल रहे थे बहुत अच्छा मैसेज लेके आप लोग यहाँ पर आए हैं। ले पे आके हम लोग 2 दिन एक्लेमेटाइज किया है, उसके बाद हम लोग खारदुंगला जाने का परमिशन मिला है। লে লাদাখ থেকে সবাই কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর যায়, আমরা কাশ্মীর থেকে লাদাখ হয়ে কন্যাকুমারী এসেছে। এবং এত সুন্দর ট্রিপটা আমাদের হয়েছে, অনেক ডেঞ্জারাস রাস্তা আমরা অতিক্রম করেছি লাদাখে। একদম পুলিশ আমাদের একটা সার্টিফিকেট দিল, আমাদের এই বার্তাকে ওনারা খুব স্বাগত জানালেন। স্বাগত জানিয়ে আমাদের একটা সার্টিফিকেট দিলেন ওনাদের সঙ্গে আমরা মিট করলাম। মিট করে তারপরে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। তারপরে ঝাড়খণ্ড থেকে আমরা পরবর্তীতে আমরা পৌঁছালাম উত্তরপ্রদেশ।
উত্তরপ্রদেশের সেই দিন আমাদের যাত্রাটা এমন হতো, সারাদিন ধরে গাড়িতে চলছি চলছি চলছি, রাত্রিবেলা কোথাও। আর যখনই আমরা কোনো লোকজনকে লোকালয় দেখতে পাচ্ছি বা কোনো, তখন আমরা তাদেরকে আমাদের সামাজিক বার্তাটাকে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করতাম। আমাদের সামাজিক বার্তা ছিল সেভ গার্ল চাইল্ড, সেভ বিউটিফুল আর্থ, সেভ নেক্সট জেনারেশন, সেভ মাদার অ্যান্ড সেভ দ্য বিউটিফুল আর্থ। এটা আমাদের ছিল সামাজিক বার্তা। এই বার্তা নিয়ে দ্বিতীয় দিন আমরা উত্তরপ্রদেশ, তারপর আবার উত্তরপ্রদেশ দিন, তারপরের দিন ভোর বেলায় রওনা হলাম ওই একই টিফিন খেয়ে। টিফিন ছিল আমাদের খুব দারুণ টিফিন, খুব ভালো টিফিন, চিয়া সিডস, ছাতু আর হচ্ছে চা বিস্কুট। আর গাড়িতে আমাদের যে লাঞ্চ হতো সেটা তো আরো লাঞ্চের কথা কি আর বলবো। লাঞ্চ আমাদের কখনো মুড়ি দিয়ে বিভিন্ন রকম ভেলপুরি বানানো হতো এইসব দিয়ে, তারপরে হচ্ছে কোনো যে বেশিরভাগ দিন আমরা ফল খেতাম রাস্তায়, যেখানকার যে ফ্রুটস, সেই ফ্রুটস পেট ভরে খেয়ে ওটাই আমাদের লাঞ্চ। একবারে রাত্রিবেলা ঘরে পৌঁছে একদম জম্পেশ করে মাংস, রুটি, বেশিরভাগই আমরা রুটি খাওয়ার চেষ্টা করতাম, ভাতটা একটু কমই খেতাম, মাঝে মাঝে ভাত খেতাম, ভাত যে একদম খেতাম না তা না, খুব কম ভাত খেতাম। খেয়ে রাত্রিবেলা তো ফুল রেস্ট করে আবার পরের দিন সকালবেলা রওনা হতাম। তারপর झरना दी बोल रहे थे हम लोग क्रॉस किया है ऑलरेडी झारखंड, बिहार, यूपी, दिल्ली, उसके बाद हम लोग हरियाणा होके हिमाचल मनाली पे पहुँचे, लेकिन मनाली से ऊपर लद्दाख जाने का रास्ता क्लोज है, ले जाने का रास्ता, क्योंकि बहुत बर्फ़ गिरा है, इतना बर्फ़ गिरा है जो 4-5 दिन से रास्ता बंद है। उससे पहले खुला था रास्ता, 1 हफ्ता रास्ता ओपन किया था, लेकिन उसके बाद इतना सारी बर्फ़ गिरा है जो रास्ता फिर वापस बंद हो गया है। हम लोग तब क्या किया है, आ गए हम लोग जम्मू कश्मीर में, जम्मू पे आ गए हम लोग, आके हम लोग वैष्णव देवी किया है। उसके बाद हम लोग श्रीनगर होके ले पे पहुँचे हैं। যদি আমরা কিছুটা হলেও জানাতে পারি যে এই মেয়েদের সুযোগ দিন, আপনারা শুধু বিয়ের জন্য তৈরি করবেন না, বিয়ে হলেও তো তাকে যদি শিক্ষিত পারেন, তাকে যদি কিছু শেখান, বিয়ের পরও সে কিন্তু তার সন্তানকে তার শিক্ষার যা কিছু শিখবে সব কিছু দান করে দেবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা আগেরটা রাজ্য পরিভ্রমণ করছি এবং আমাদের যথাসাধ্য তাকে অতিক্রম করে আমরা চেষ্টা করছি আরও এই এলাকাতে পৌঁছে যেতে। আমরা শুধু লাদাখ পর্যন্ত গেছি এবং আমাদের 3 দিনের পক্ষে যতদূর সাধ্য ছিল আমরা মানুষকে বুঝিয়েছি। আমরা নিজেরা খুব আনন্দিত হয়েছি যে আমরা এই কাজে সফল হয়েছি। কিছু মানুষের মনে হলেও কিছু না কিছু নাড়া পড়বে যে এরা এত দূর থেকে এসছে, এরা শুধু হাসছে না, খেয়েছে না, ঘুরছে না, বেড়াচ্ছে না, এরা কিছু কাজ করছে এবং এটা আমাদের সামাজিক কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। এই জন্য প্রত্যেক টেলিভিশন আমরা বেরোবো এবং কোনো না কোনো সামাজিক বার্তা দিয়ে আমরা সবাইকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করবো আমাদের দেশের চ্যালেঞ্জ। बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, बहुत सारे लोग रोड ट्रिप में जाते हैं, बहुत सारे लोग एडवेंचर के लिए निकल पड़ते हैं। मैं भी ऐसा ही, हम तीनों एडवेंचर के लिए निकल पड़े, लेकिन हमारे एडवेंचर के साथ है एक मैसेज समाज के लिए, और ये मैसेज लेके हम लोग क्रॉस किया है इंडिया का डेंजरस जो पॉइंट है जोजिला पास। हम लोग जा चुके थे ले पे जोजिला होके, और हम लोग उतरे थे मनाली होके। হ্যাঁ, আগ্রা এক্সপ্রেসওয়ে, তারপরে আর কি কি এক্সপ্রেসওয়ে, যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে, যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে। কি সুন্দর রাস্তা, ভারী সুন্দর, চারিদিকে শুধু গাছ, সবুজ সবুজ গাছ, গাছে ফুল ভর্তি। রাস্তাগুলো ক্রস করতে সুতোপার গাড়ি চালাতে এত ভালো লেগেছে, আর আমরাও খুব সেটাকে উপভোগ করেছি। খুব সুন্দর রাস্তা দিয়ে আমরা ক্রস করলাম। তারপরে হরিয়ানাতে আমরা ছিলাম, কুরুক্ষেত্রে, তারপর হরিয়ানাতে কুরুক্ষেত্রে গেলাম না, হ্যাঁ পানিপথে স্টে কি, পানিপথে ছিলাম আমরা, পানিপথেও ছিলাম না, পানিপথে থাকলাম, কুরুক্ষেত্র দেখে পানিপথে আর কি, সোনিপথ, পানিপথ, অনেক কিছু দেখেছি, সবাই মিলে একসঙ্গে বসে এবার আলোচনা করছি। ले पे आके हम लोग 2 दिन स्टे किया। उसके बाद हम लोग का परमिशन मिला है ऊपर जाने का। हम लोग सियाचिन एक दिन स्टे किया है, सियाचिन होके पेंगोंग लेक। लेकिन पेंगोंग लेक से जब वापस ले आ रही थी, एक भयंकर एक्सपीरियंस हुआ है।
डेंजरस जोन था, वो डेंजरस रास्ता लाचांगला पास में हम लोग फंस गए थे। इतना बर्फ़ गिरा, लाइफ रिस्क हो गए थे। तो हम लोग गाड़ी स्टॉप कर दी। उस दिन रात हम लोग रास्ते पे ही था, जो चांगला पास, वहाँ पर हम लोग पूरा रात स्टे किया है गाड़ी के अंदर। हम लोग सोचा था सिर्फ हमारी गाड़ी है, लेकिन जब सुबह हुआ है लद्दाख रेस्क्यू टीम आके हम लोग को रेस्क्यू किया है। हम लोग पूछा है जो सिर्फ हमारी गाड़ी है, बोले नहीं आगे पीछे 150-200 गाड़ी ऐसा फंसे हुए हैं। जो लोकल ड्राइवर था, यहाँ का लोकल था, वो लोग तो निकल गए, लेकिन बहुत सारी हमारे जैसा थे और लेका भी थे, कश्मीर का भी थे, वो फंस गए थे। द्रौपदी दी थोड़ा बहुत ही टेंशन में आ गए हैं झरना दी, क्योंकि कल अनफॉर्चुनेटली झरना दी को जाना होगा। कल सुबह फ्लाइट है, इसलिए थोड़ा टेंशन हो गई। हम लोग यहाँ पर चांगला वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, और सेकेंड हाईएस्ट मतलब बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस। तो यहाँ पर हम लोग फंसे हैं, बहुत सारी गाड़ी फंसे हैं, सिर्फ हम लोग नहीं है। तो थोड़ा बहुत टेंशन हो रहे हैं, ज़्यादा टेंशन हो रहे हैं, क्योंकि कल सुबह झरना दी को जाना है, इसलिए। क्योंकि हम और तपो दीदी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सबका जो होगा हम लोग का भी होगा, वो होगा। क्योंकि आर्मी वालों ने और यहाँ जो फंसे हुए ड्राइवर लोगों ने बहुत मदद करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं यहाँ पर। तो कोई धक्का लगाने का ज़रूरत होता है, थोड़ा चलाने का ज़रूरत होता है, वो भी कर देते हैं। तो इसलिए इतना टेंशन नहीं है। टेंशन है झरना दी को कल फ्लाइट है, इसलिए थोड़ा बहुत टेंशन हो रहे हैं। चलो एक बार ताकाओ चांगला में सेल्फी में। ये है चांगला वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। देखो मैं गाड़ी से बाहर आ गई, ये देखो यहाँ पर बर्फ। वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, यहाँ पर हम लोग सब फंसे हैं, बहुत सारी गाड़ी फंसे हैं, और जैम भी लग गए हैं। पता नहीं है कब ये जैम क्लियर होगा। देखो इसी जगह में मेरा गाड़ी फंस गए है, हम लोग इसी जगह में फंसे हैं। वेट करते करते शाम हो गए है। लोकल बॉय है, वो कोशिश किया है हमको थोड़ा आगे लेके जाने के लिए। देखो कितना बर्फ़ गिरा है, पूरा रात भर बर्फ़ गिरा है, पूरा रात भर। हम लोग तो वहाँ पर ही रुक गए हैं। कोशिश किया है एक लोकल बॉय गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन वो जो लेका बॉय है वो भी बोल रहे हैं नहीं होगा, इस बार छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे रिस्क हो जाएगा। मैं तो पीछे आ गई थी, तो बोल रहे हैं बहुत ही रिस्क है, यहाँ पर रुक जाना पड़ेगा, रेस्क्यू टीम के लिए वेट करना पड़ेगा। तो हम लोग वेट कर रही थी रेस्क्यू टीम के लिए, सुबह के लिए हम लोग वेट कर रही थी। ये दोनों लोकल बॉय है, यहाँ का ही है, लेका है। बहुत कोशिश किया है हम लोग को, जो थोड़ा नीचे लेके देंगे। जो बर्फ़ गया पूरा स्टीप है, टोटली डाउन है, इतना डाउन, थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो पूरा खत्म। तो क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर जहाँ पर ड्यूटी में थे, वो लोग बोल भी रहे हैं जो संभाल के चलाना, क्योंकि सुबह एक गाड़ी एक ट्रक खाद में चले गए हैं। सुबह होते ही लद्दाख का जो पुलिस टीम है, रेस्क्यू टीम है, वो लोग आए हैं, आके हम लोग को नीचे लेके गए हैं। तो वो लोग ये भी किया है, सबको ही पानी, गर्म पानी, बिस्किट और चाय दे रहे थे, और बोल रहे थे आप लोग को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, जिसका प्रॉब्लम हुआ है उसको लेके एमआई रूम पे चले गए ऊपर। तो लद्दाख पुलिस डिपार्टमेंट का मदद से हम लोग 3 किलोमीटर नीचे आ गए। हमारी गाड़ी 3 किलोमीटर नीचे, जो फंसे हुए थे सबका गाड़ी रेस्क्यू करके, और जो स्पेशल ड्राइवर है वो लोग जो स्नो में विदाउट चेन, हमारे पास चेन नहीं थे, विदाउट चेन वो लोग गाड़ी कार लेके नीचे आ गए हैं 3 किलोमीटर। उसके बाद मेरे हाथ में गाड़ी उन लोगों ने दे दिया और बोल रहे थे आप चला सकते हैं। तो मैं बोल रही हूँ हाँ अब हो जाएगा। देखो रास्ता कितना डेंजरस, रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा स्नो है। बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए हैं, वो लोग को लेके गए हैं। और जो लद्दाख का पुलिस फोर्स है, पुलिस डिपार्टमेंट है, रेस्क्यू डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा हेल्प किया है, बहुत अच्छा। देखो एक बाइक गिरे हुए है, बहुत सारे लोग ऐसा गाड़ी रख के भाग गए हैं, लेकिन हम हमारी गाड़ी लेके नहीं हम छोड़ के आ गए हैं। तो हम बोल रहे थे नहीं, गाड़ी पे मुझे रुकना है, सुबह हो जाएगा, आएगा रेस्क्यू करने के लिए। ये देखो ये सर हमारे गाड़ी नीचे लेके
दे रहे हैं। तो सफेद वाला जो एक छोटा हाथी गाड़ी है वो मिट्टी देते हुए जा रहे हैं क्योंकि स्लिपरी नहीं होगा, स्लिप नहीं करेगा, मिट्टी देते हैं बर्फ के ऊपर, उसके ऊपर चलते हैं। झरना दी का फ्लाइट मिस हो गए थे। फ्लाइट का बात दिमाग में ही नहीं आ रहे थे तब हम लोग कैसे जिंदा वापस घर आऊँगी, वापस वो रास्ता क्रॉस करके हम लोग नीचे आऊँगी, वही सोच रही हूँ। अब हम लोग आ गए हैं ले से हम लोग मनाली जाने वाला रास्ता। मनाली में भी बहुत डेंजरस 3 पास था, नामकिला पास, लाचंगला पास, वो क्रॉस करके हम लोग अब अच्छे रास्ते पे आ गई हूँ। फ़ोटो खींच रही हूँ। देखो ये समुंदर है, बर्फ़ों का समुंदर। इस समुंदर अब तो रास्ता बहुत ही अच्छा है, इसलिए हम लोग गाड़ी रोक दिया है नीचे मनाली। आज हम लोग मनाली पहुँच जाऊँगी। चलो उसके बाद साउथ इंडिया के लिए निकल जाएंगे। ভ্যাকেশনকে পুজো এবং গরমের ছুটি পুজো ভ্যাকেশনে আমরা একটু লম্বা লম্বা পাই, তা আমরা সেই ছুটিগুলোকে এমনি শুধু বিনোদনের জন্য কাটাই না। আমরা জানি যে ভারতবর্ষে অনেক ট্যালেন্ট আছে, এত ট্যালেন্ট আছে, যেমন ছেলেদের মধ্যে তেমন মেয়েদের মধ্যে। ছেলেদের পরিসর আছে, নিজেদের বিস্তৃত করার জায়গা আছে, বাবা মার সাপোর্ট আছে, কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সাপোর্ট খুব কম। আমরা সেই জন্য কী করি, এবারের যে আমাদের পরিভ্রমণ ছিল এবং আমাদের যে অভিযান ছিল, আমরা এবার চেষ্টা করেছি সেই সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে যাদের মধ্যে বিকাশটা অনেকটা কম। মেয়েদের নিয়ে ওরা ভাবে না, ওরা ভাবে বিয়ে দিয়ে দিতে পারলে আমাদের কাজ শেষ। কিন্তু একটা মেয়ের মধ্যে যে কত প্রতিভা রয়েছে, বিশেষ করে আমাদের মতন দেশে এত প্রতিভা রয়েছে, কিন্তু তাদের স্ফুরণ নেই, বিকাশ নেই। এরা প্রকৃতির কাছ থেকে শেখে, মানুষের কাছ থেকে শেখে, এরা পুঁথিগতভাবে হয়তো অতটা শেখে না, কিন্তু এদের মধ্যে ট্যালেন্টের অভাব নেই। हम लोग आ गए अब अच्छे रास्ते पे, लेकिन दोनों तरफ देखो समुंदर ही समुंदर, बर्फ़ का समुंदर। तपो दीदी झरना दी बोल रहे थे और इतना बर्फ़ दिखा है लाइफ में, बर्फ़ देखने का ख्वाब मिट गए हैं। ক্লান্ত হয়ে গেছে, এবার আমরা গাছপালা চাই বলে মনে হচ্ছে সবুজ তলে যায় আবার 45 ডিগ্রি। না সবুজ গাছপালা চাই, তাই না? बर्फ़ देख के ख्वाब मिट गए, अब हम लोग हरियाली देखने का मन कर रहे हैं। ये देखो रास्ता, देखो कैसा रास्ता। हम लोग अब तो ये अच्छा रास्ता है क्योंकि गाड़ी चल पा रहे हैं, दोनों तरफ स्नो है, ठीक है, लेकिन रास्ता अच्छा है। मैं बहुत स्लो ही चलाती हूँ। सरचू में हमारे साथ 3-4 ऐसा छोटा वाला गाड़ी थे, तो वो लोग तो आगे निकल गए ज़ोर से चला के, लेकिन मैं धीरे धीरे ही चला रही हूँ। जब तक मैं जीऊँगी तब तक याद रखूँगी ये रोड ट्रिप, ये लद्दाख वाला रोड ट्रिप, ये ले वाला रोड ट्रिप। हम लोग को ना ले में पहुँचाने में थोड़ा जैसा नॉर्मल रोड ट्रिप पर पहुँचते हैं उससे ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि हम लोग मैसेज फैलाते हुए चल रही थी। ये देखो ये जगह बहुत ही डेंजरस है, ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत डेंजरस रास्ता, गड्ढा है, कितना खाद है वो पता नहीं है। मेरा तो 2-4 बार साइलेंसर में लग भी गए हैं नीचे। हम लोग ये कार एक्सपीडिशन में कंप्लीट किया है 18 स्टेट। स्टार्ट किया हम लोग वेस्ट बंगाल से, उसके बाद झारखंड के बाद बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल से हम लोग आगे है जम्मू कश्मीर, उसके बाद हम लोग लद्दाख से हम लोग आ गए हैं एमपी, मध्य प्रदेश में हम लोग से हम लोग जाए छत्तीसगढ़ होके हम लोग महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका, उसके बाद तमिलनाडु के बाद हम लोग आ गए हैं तेलंगाना से हम लोग जा चुके हैं आंध्र प्रदेश से उड़ीसा आके कंप्लीट हुआ है हमारे 18 स्टेट। स्पीति वैली, तो ये लोग सोच रहे हैं हम 34 नेशनल हाईवे है हमारे घर के नजदीक। না না, আমি ভাবছি বাগনাপাড়া স্টেশন থেকে সিকেটি কার से स्कूले যাচ্ছি। मैडम सोच रहे हैं हमारे स्कूल के पास जो नजदीक जब भी हम लोग मनाली आ गई हूँ, सोच रही हूँ हम लोग प्लेन एरिया पे आ गए, इसलिए मजाक कर रहे थे जो ऐसा लग रहे हैं वो तेरा लोकल एरिया है बागनापाड़ा स्कूल का ऐसा लग रहे हैं, क्योंकि इतना डेंजरस रास्ता क्रॉस करके आई हूँ हम लोग। उसके बाद ये रास्ता को ऐसा लग रहे है जो प्लेन में चला रही हूँ,
जो हिल में हूँ अभी भी ऐसा नहीं लग रहे हैं। चलो नॉर्थ इंडिया कंप्लीट किया है, उसके बाद हम लोग मिडिल इंडिया होके जाऊंगी साउथ इंडिया की तरफ। अनफॉर्चुनेटली झरना दी चंडीगढ़ से वापस कर रहे हैं कोलकाता की तरफ, तो यहाँ से झरना दी चंडीगढ़ एयरपोर्ट में जाएंगे और हम लोग जा रही हूँ मध्य प्रदेश की तरफ। ছেলেমেয়েরা আমরা জীবনে আমি অন্তত আমি জীবনের শেষ দাঁড়িয়ে পর্যায়ে আছে। দারুণ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, খুব ভালো লেগেছে, খুব এনজয় করেছি। তারপরে কাশ্মীর থেকে যখন আমরা লাদাখ গেলাম, আমাদের রুটটা ছিল জজিলা পাস। জজিলা পাস তো ভয়ঙ্কর জায়গা, ভয়ঙ্কর বরফ আবৃত্তি। সেখানেও আমরা অনেক সামাজিক বার্তা অনেককে আমরা পৌঁছে দিয়েছি, অনেকের কাছে বলেছি। গেছি আমি সিয়াচেন গেছি, তারপরে প্যাংগম লেক গেছি। প্যাংগম লেকটা এত সুন্দর, জল নীল জল, ওই জলের কখনো কখনো রং পরিবর্তন হয় ওয়েদারের সঙ্গে সঙ্গে, রং একটা কেন প্রায় 200-150 গাড়ি ওরকম আটকে গেছে। সমস্ত গাড়িকে ওরা রেস্কিউ করে বরফ থেকে নামে নিচের দিকে এনে দিয়েছে। সারা রাত আটকেছিলাম, পরের দিন রেস্কিউ পার্টি ভোরবেলা, কি অদ্ভুত, ভোরবেলা ওই সমস্ত গাড়িদের ওই রেস্কিউ পার্টি চা, গরম জল, বিস্কুট সব খাবার দিয়েছে। খেয়ে দিয়ে তারপর আমরা নিচে নেমে আসলাম। পরের দিন আমরা মানে অটল টানেল ওনার অনেক লেন্থ, অনেক লং। তারপর আমরা ওই পাঞ্জাবের দিকে চলে আসলাম। পাঞ্জাবে এসে ওখান থেকে আমি চণ্ডীগড় থেকে আমি বাইকে বাড়ি ফিরে এসে, কারণ আমার পক্ষে বাকিটুকু করা সম্ভব হয়নি, আমার পরিবারের অসুবিধার জন্য আমাকে ফিরে আসতে হয়েছে। সুতপা আর তপতি বাকিটা কমপ্লিট করেছে। কিন্তু এই রোড ট্রিপটা আমরা এতটাই এনজয় করেছি, মানে দারুণভাবে এনজয় করেছি, সেটা আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারবো। দারুণ এনজয় করেছি, খুব সুন্দর একটা অভিজ্ঞতা নিয়ে এখন দীর্ঘদিন আবার থাকি। আবার নেক্সট আমাদের প্রোগ্রাম আবার হবে, আমরা আলোচনা করে আবার পরবর্তীকালে আমরা বেরোবো, আপনাদের সাথে শেয়ার করবো, আপনারা সঙ্গে থাকবেন। हम लोग मध्य प्रदेश की तरफ जा रही हूँ। मध्य प्रदेश में हम लोग एक दिन स्टे करेंगे, उसके बाद हम लोग निकल जाऊंगी सीधा साउथ इंडिया की तरफ। मध्य प्रदेश में हम लोग कुछ जगह एक्सप्लोर किया है। हम लोग खजुराहो पे एक दिन स्टे किया है, खजुराहो टेम्पल घूमा है। उसके बाद खजुराहो से हम लोग चले गए अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा रिवर स्टार्ट हुआ है। वो नर्मदा देवी नर्मदा को हम लोग दर्शन किया है। उसके बाद हम लोग चले गए उज्जैनी, जो 12 ज्योतिर्लिंग में 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है। हम लोग 2 ज्योतिर्लिंग दर्शन किया है, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर। उसके बाद हम लोग सीधा साउथ इंडिया निकल गए। কলকাতা, কাশ্মীর টু কন্যাকুমারী, তারপর লাদাখ। আমরা 18টি রাজ্য অত্যন্ত সফলভাবে পরিক্রমা করে যেখানে যেখানে সম্ভব যতখানি আমরা সুযোগ পেয়েছি তার থেকেও নিজেদের বেশিভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। যেহেতু আমরাও অনেক কষ্ট করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আমরাও চাই যে আমাদের মতোই ভারতবর্ষের মেয়েরা এগিয়ে আসুক, এগিয়ে এসে নিজের পায়ে দাঁড়াক, পৃথিবীটাকে নতুন করে দেখুক, নতুন করে জানুক এবং নিজেদের প্রতিভার স্ফুরণ হোক। ভারতবর্ষের তাতে অগ্রগতি হবে, অনেক বেশি অগ্রগতি হবে। আমাদের মেয়েদের মধ্যে এত ট্যালেন্ট, ছেলেদের মধ্যে অবশ্যই আছে, কিন্তু ছেলেরা যেই সুযোগটা পায় মেয়েরা কিন্তু সেই সুযোগটা পায় না। ये महाराष्ट्र में हम लोग का एंट्री हो गए हैं। हम लोग मध्य प्रदेश छोड़ के आ गई हूँ महाराष्ट्र में। बोर्ड में लिखा हुआ है हैदराबाद। हम लोग धीरे धीरे बढ़ रही हूँ साउथ इंडिया की तरफ। 52 ये NH 52 रोड देखो, साइड में बहुत ही खूब सुंदर है ये। जब भी साउथ इंडिया आती हूँ मैं एक बार बेंगलोर मेरा गुरुजी का आश्रम में आती हूँ। हम लोग यहाँ पर कोर्स करेंगे, उसके बाद हम लोग साउथ इंडिया जाएंगे। देखो आश्रम में आ गई हूँ, गुरुजी का फ़ोटो लगा हुआ है यहाँ पर। हम लोग स्टे करूँगी यहाँ पर। हम लोग थर्सडे पे यहाँ पर आई हूँ, लेकिन आज ही सुबह स्टार्ट हो गए हैं एडवांस मेडिटेशन कोर्स, तो आज नहीं होगा। तो हम लोग सिर्फ स्टे किया है एक दिन और हम लोग निकल गए। जो हमारे ये कार एक्सपीडिशन का लास्ट डेस्टिनेशन है कन्याकुमारी की तरफ। नेक्स्ट वीक हम लोग आएंगे और एडवांस मेडिटेशन कोर्स करूँगी। तपो दीदी साथ में सहज समाधि कोर्स भी करेंगे। कर्नाटका में थी हम लोग, कर्नाटका छोड़ के आ गई हूँ। ये है तमिलनाडु पे हम लोग जा रही हूँ कन्याकुमारी की तरफ। लद्दाख कश्मीर टू कन्याकुमारी रोड ट्रिप का ये है लास्ट डेस्टिनेशन। हम लोग सक्सेसफुली पहुँच गए हैं कन्याकुमारी पे विदाउट एनी इंजरी। हम लोग पहुँच गई हूँ
कन्याकुमारी। यहाँ से रामेश्वरम बहुत ही नज़दीक है, वो है 12 ज्योतिर्लिंग का एक ज्योतिर्लिंग। तो रामेश्वरम दर्शन करके हम लोग जाएंगे वापस गुरुजी का आश्रम में। वहाँ पर हम लोग कोर्स करेंगे, 1 हफ्ता रहेंगे, उसके बाद हम लोग पौंडीचेरी होके कोलकाता की तरफ जाऊंगी। रामेश्वरम दर्शन हो गए हैं, अब हम लोग जाऊंगी बेंगलुरु आश्रम की तरफ। वापस हम लोग आ गए हैं बेंगलुरु इंटरनेशनल आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर में। हम लोग 1 हफ्ता रुके थे, वहाँ पर कोर्स किया है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग पौंडीचेरी जा चुके हैं। पौंडीचेरी 1 दिन स्टे किया है, पौंडीचेरी होके हम लोग कोलकाता की तरफ निकल गए। पौंडीचेरी बेंगलुरु से बहुत ही नज़दीक है, इसलिए सोचा हम लोग पौंडीचेरी होके ही जाएंगे। जब पौंडीचेरी होके जाऊंगी तब रास्ते पे आएगा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये होके ही हमारे वेस्ट बंगाल जाना पड़ेगा। चलो अब वापस घर जाने की पाला है। ये रोड ट्रिप में हम लोग कंप्लीट किया है 13,000 किलोमीटर और पेट्रोल खर्च हुआ है 866 लीटर। और हमारे पेट्रोल का जो एक्चुअली क्या है, हर स्टेट में एक ही रेट नहीं है, तो मेरा जो पेट्रोल का खर्च हुआ है वो है 89,198 रुपीज़। होटल में खर्च हुआ है 78,000। हम लोग ये कंप्लीट किया है 48 डेज़ में। 48 डेज़ में फूड के लिए, फूड और एटसेट्रा खर्च हुआ है 48,000। रोड टैक्स टोल में खर्च हुआ है 12,000। गाड़ी सर्विस का खर्च हुआ है 68,000। और 48 डेज़ के अंदर हम लोग 6 डे स्टे किया है आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर आश्रम में। टोटल खर्च हुआ है 2,95,198 रुपीज़। 48 डेज हम लोग एक साथ थे, बहुत ही अच्छा एक टाइम बिताया है, बहुत अच्छा एक टाइम बिताया है। 47 দিন ধরে কাটিয়ে আজকে আমরা আলাদা হচ্ছি, কিন্তু দৈহিকভাবে আলাদা হচ্ছি, মানসিকভাবে নয়। मैं फर्स्ट डे से 48 डे तक अलग अलग वीडियो अपलोड किया है, वहाँ पर और भी डिटेल्स में मिल जाएगा। जो लोग डिटेल्स इन्फॉर्मेशन चाहते हो वो लोग देख सकते हैं। माउंटेन ब्लॉग सुतोपा MV सुतोपा। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, माउंटेन ब्लॉग सुतोपा MV सुतोपा।